Hello everyone, I am Jaya Sethi. Today I welcome you on the behalf of Total Exam Plus in the today's session in which we will discuss about acid, bases and salts. So let us start. First of all, we should know what is neutral substance, right? First of all, we should know what is neutral substance. Neutral substance is simply which is having the pH of 7. ठीक है. अब एक्चुअली में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस. अब जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो एक H प्लस और एक OH माइनस में ब्रेक होगा. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस हो, that substance is a neutral substance, right? So here one H plus and one OH minus ion is there. So water is a neutral substance and every neutral substance shows the pH of 7. So now let us understand what are indicators. Suppose you are given with 3 beakers, right? हमें 3 beakers प्रोवाइड करे गए हैं. हमें नहीं पता किस बीकर में एसिड है, किस बीकर में बेस है and which one is containing salt. So what happens if we can't touch it, right? It can cause blister, it can cause skin diseases. So how can we check whether the given substance is acid, a base or a salt? We check it through the indicators. कैसे check करते हैं? Through indicators. अब indicators होता क्या है? Indicators are simply the substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color change, right? सिंपली क्या होता है कि सपोज हमने किसी इंडिकेटर को एसिड सॉल्यूशन में डाला तो वो अलग टाइप का कलर देगा. सपोज हमने इंडिकेटर को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो किसी और टाइप का कलर शो करेगा. सो इस टाइप से जो इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स देते हैं हमें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में प्रेजेंस में. तो इंडिकेटर को फॉर एग्जांपल this one is a beaker, we have to check it whether it contains a acid or a base. We can simply put a indicator in it. We can put a litmus or any other indicator which we will discuss later. So what will happen when we put indicator in it? It shows the color change. Through the color change we can determine whether the given substance is an acid or a base, right? So let us discuss the types of indicator, right? So indicators are mainly of 2 types, natural indicators and synthetic indicators. But later on some more indicators were also developed like olfactory indicators and the another one is universal indicator. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स को. नेचुरल इंडिकेटर्स आर सिंपली विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. वो नेचुरल सोर्सेज प्लांट्स भी हो सकते हैं और वो नेचुरल सोर्सेज एनिमल्स भी हो सकते हैं, राइट? सो कोई भी इंडिकेटर जो किसी भी नेचुरल सोर्स से हमें मिले वो क्या होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर. सम एग्जाम्पल्स आर लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एसेट्रा, राइट? So these are some natural indicators. ये different color show करेंगे हमें acidic और basic solution की presence में. So let us discuss this one by one. So first one is litmus, right? First one is litmus. Litmus अब obtained किससे होता है? Natural source है वो हमें पता है, but किस natural source से? It is obtained from lichens, right? It is obtained from lichens. अब जो लिटमस होता है उसका जो सॉल्यूशन फॉर्म है वो किस कलर में होगा? पर्पल कलर में, राइट? लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? पर्पल कलर होगा. बट मेनली जो लिटमस होता है वो 2 कलर में आता है, दैट आर ब्लू एंड रेड, राइट? दीज आर मेनली ब्लू एंड रेड. अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लू लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल शो रेड कलर, राइट? सिमिलरली अगर हमने रेड लिटमस को ब्लू बेस में डाला तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में, राइट? तो हम कैसे याद कर सकते हैं? थ्रू अ कोड वर्ड दैट इज बार. हेयर A shows acid, B shows blue and R shows red.
राइट। तो एसिड के प्रेजेंस में जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में कन्वर्ट होता है, और बेस की प्रेजेंस में इससे ऑपोजिट होगा, दैट इज रेड विल कन्वर्ट इट इनटू ब्लू. So the next one is turmeric. Turmeric what? What is turmeric? It is simply known as हल्दी. So basically सब हम लोगों ने हल्दी देखी है घर में, कौन से कलर की होती है वो? येलो कलर की, राइट? सो ये एक अनदर टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है, राइट? टर्मरिक का मेन कलर हमारे पास क्या होता है? येलो कलर. अब क्या होता है, टर्मरिक सॉल्यूशन को सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाना है या फिर हमें उसका एक पेपर लेना है. लेकिन अगर हम इस टर्मरिक सॉल्यूशन को बेस में डालते हैं, राइट, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा? रेडिश ब्राउन, राइट. लेकिन अगर हमने इसे एसिड में डाला तो कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, राइट, वो येलो का येलो ही रहेगा. नेक्स्ट वन इज रेड कैबेज. रेड कैबेज का जो मेन कलर होता है वो क्या होता है? पर्पल कलर, राइट. ओरिजिनल कलर इसका क्या होता है? पर्पल कलर. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेड कैबेज का जूस एक्सट्रैक्ट करना है. फिर हम जब इस रेड कैबेज के जूस को किस में डालेंगे? एसिड में डालेंगे. ओरिजिनल कलर इसका क्या है? पर्पल कलर. लेकिन जब हमने इसको एसिड में डाला तो वो कौन से कलर का कलर शो करेगा? रेडिश कलर, राइट. सिमिलरली अगर हम इस पर्पल सॉल्यूशन और वी कैन से पर्पल एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड कैबेज को बेस में डालें तो वो कौन सा कलर शो करेगा? ग्रीन कलर, राइट. सो दीज वर द सम नेचुरल इंडिकेटर्स. नाउ द टर्न फॉर द सिंथेटिक वन. सिंथेटिक वन सिंपली दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, राइट. इनको हम और क्या बोलते हैं? मैन मेड इंडिकेटर्स. एक्चुअली में इन इंडिकेटर्स को हम लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, और सिंपली ह्यूमंस बना रहे हैं तो हम इनको मैन मेड इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, राइट. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. अब फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है, राइट. फिनोफ्थलीन, लेट अस रिप्रेजेंट P as फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है, राइट, वो कैसा होता है हमारे पास? कलरलेस. लेकिन जब हम इसे एसिड में डालते हैं तब भी ये कलरलेस ही रहता है. बट जब हम फिनोफ्थलीन को बेस में डालें तो वो कैसा कलर शो करता है? पिंक कलर, राइट. तो फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस रहता है इन एसिड, बट वो पिंक कलर का हो जाता है इन बेस. सिमिलरली नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज. हमें नेम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज, इट मीन्स कौन से कलर का होगा? ऑरेंज कलर का. इस इमेज में हम देख सकते हैं कलर कौन सा है हमारे पास? ऑरेंज कलर. जब हमने इसको एसिड में डाला तो वो कौन सा कलर शो कर रहा है? रेड कलर. जब हम इसको एल्कली, एल्कली मीन्स बेस, राइट, एल्कली मीन्स बेस. तो जब हम इसको बेस में डाल रहे हैं तो ये कौन सा कलर शो करेगा? येलो कलर, राइट. तो मिथाइल ऑरेंज इज अ नेचुरल synthetic indicator which is orange in color. It turns red with acid and turns into yellow with base. So the next one is olfactory indicator. अब olfactory indicator की हमें क्या नीड थी? सबसे पहले हमें ये समझना है, राइट. अब जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, राइट, या फिर कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, लाइक वो कुछ कलर्स जो होते हैं वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते. सो उस केस में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को डेवलप किया गया. क्यों? क्योंकि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब वो इंडिकेटर्स जिनको हम थ्रू स्मेल देख सकें कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, राइट. सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सिंपली द सब्सटेंसेस which change their smell when mixed with acid or a base, right. For example, onion and vanilla, right. For example, let us discuss onion. सबसे पहले हमें अनियन के केस में क्या करना है? हमें अनियन का पेस्ट बनाना है और वी कैन से हमें उसका जूस निकालना है. सिमिलरली लाइक हम कैसे कर सकते हैं? हमने उसको मैश कर दिया और हमने उसको ग्राइंड कर दिया मिक्सर में, राइट. सो इस तरीके से हमें अनियन का पेस्ट बनाना है या फिर हमें उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है. अब क्या होगा? जब हम उसे बेस में डालेंगे तो वो अपनी स्मेल लूज कर देगा.
लेकिन जब हम उसे एसिड में डालेंगे तो उसकी स्मेल जो होगी वो चेंज नहीं करेगी। सो लेट अस राइट हियर, अनियन को जब हम बेस में डाल रहे हैं तो क्या होगा, वो अपनी स्मेल लूज कर देगा, लेकिन जब हम अनियन को एसिड में डालेंगे तो वो कोई कलर में चेंज और वी कैन से कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन स्मेल, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज वनीला। वनीला भी सेम ऐसे ही होता है, वो वैनिश कर जाती है उसकी स्मेल विद बेस, और एसिड में वो सेम ही रहता है, यानी कि उसकी कोई भी स्मेल जो होगी वो चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगी। सो दीज वर द olfactory indicators. So what were the olfactory indicators? All the substances which change their smell when mixed with the acid or a base, right? क्यों इसे डेवलप किया गया था? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो लेबोरेटरी में वर्क करते थे, जिनका इंटरेस्ट था कि वो रिसर्च में आगे परफॉर्म कर सके, राइट? So here are some indicators and their original color. So let us discuss the indicators one by one. So first one is red litmus. Red litmus का original color obviously red ही होगा, acid में no change, base में blue. Similarly blue litmus original color blue ही होगा, acid में red color का हो जाएगा, base में no change. Similarly turmeric, अभी हमने डिस्कस किया था that turmeric was a natural indicator. सो टर्मरिक जो होता है हमारा, उसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, एसिड में कोई भी कलर में चेंज नहीं करेगा, और बेस में कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। सिमिलरली रेड कैबेज जूस येलो पर्पल कलर का होगा हमारा ओरिजिनल कलर, एसिड में कैसा कलर होगा, रेडिश कलर, और बेस में ग्रीनिश येलो कलर। नेक्स्ट वन इज फिनोफ्थलीन, कलरलेस होता है इसका ओरिजिनल कलर, एसिड में भी कलरलेस, एंड इन बेस इट विल बी पिंक, राइट। So the next one is methyl orange. Original color obviously it will be orange. In acid it will show red color, and in base it will show yellow color. Right? So the next one is onion. Original color, onion and vanilla are the natural indicators. So हमें यहाँ पर colors से कोई link नहीं है, हमें simply उसकी smell से है। So acid में कोई भी smell में change नहीं आएगा दोनों के ही cases में, whereas in base in both cases onion and vanilla they loses their smell. So the next one is universal indicator. यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी तक के सबसे हेल्पफुल इंडिकेटर है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर शो करते हैं, राइट। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो पीएच 1 to 14 पर अलग अलग डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो हमें शो करते हैं। सो यहाँ से हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि हम परफेक्टली बता सकें कि कौन सा एसिड है जिसके अंदर हमने इंडिकेटर डिप किया है, राइट। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो स्ट्रिप्स फॉर्म में भी होता है। स्ट्रिप्स फॉर्म जो होती है सबसे यूजफुल होती है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन फॉर्म, राइट। सो द यूनिवर्सल इंडिकेटर अब वो बनता कैसे है, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर? सिंपली क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोफ्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, bromothymol blue monosodium salt, thymol blue monosodium salt, and the next one is these are the some solutions which are mixed together to form the universal indicator, and then they can be used as a solution or they can also be used as the strips, right. So हम कलर मैचिंग चार्ट से देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमने जिस सॉल्यूशन के अंदर डाला है वो एसिड है या बेस है, right. So you can see here at pH 1 it shows maroonish color, at pH 2 dark orange, proceeding with the light orange, then yellow, then the shades of green, and then the shades of purple, right. So from like this we are provided with the chart from which we have to compare the colors and determine whether the solution is acidic or which type of acid is this, or whether the solution is base or which type of base is the given solution is, right. So now the third topic is acid. So first of all we should know what are acids. In neutral substances we know equal number of H plus and OH minus ions are present, right. They are present in the equal amount.
सो अब एसिड में क्या होता है, सिंपली H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है, और सिंपल केसेस में H प्लस आयंस ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। इन मैक्सिमम केसेस H प्लस आयंस ही प्रेजेंट होते हैं इन एसिडिक सॉल्यूशन. Let us consider an example. Suppose 5 H plus ions are there and 2 OH minus ions are there. So what will happen here? Out of 5 H plus ion, 2 H plus ion will be used to neutralize 2 OH minus ion, and left over 3 H plus ion will make the solution acidic, right? So acidic solutions are simply those which contains maximum amount of H plus ion, or they contain simply only H plus ion, right? So here are some properties of acid. So first property is they are sour in taste, right? They are sour in taste. लास्ट स्लाइड्स में हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं, और जब भी हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन सिंपली व्हाट, कि हम उन्हें वाटर में मिक्स कर रहे हैं, राइट। सो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो H प्लस आयंस जो हैं वो रिलीज कर देंगे. Some of the examples are sulfuric acid, acetic acid, nitric acid, etc. Right? Now, next are the some properties of acid. We have already discussed the properties of acid in the above paragraph. Let us revise it again. So the first property is acids have a sour taste. They convert blue litmus into red color. They conduct electricity. Obviously they will conduct electricity because the ions will migrate to the oppositely charged electrode and they will conduct electricity, right? And simply they release H plus ion in aqueous solution, right? अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसिड. जो एसिड्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन इज नेचुरल एसिड एंड नंबर टू इज मिनरल एसिड, राइट. तो अब हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज नेचुरल एसिड्स, राइट. So natural acids is simply like the natural indicator. At that stage, those indicator was prepared from the natural sources. और यहाँ पर क्या होगा, ये एसिड्स जो होंगे हम इनको नेचुरल सोर्सेज से प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एनिमल्स के थ्रू हो, कोई भी नेचुरल सोर्स हो. और हम इन नेचुरल एसिड्स को और क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट. So here are some examples. Number one is methanoic acid. Formula of methanoic acid is HCOOH, right? I have also written here. Next one is acetic acid and third one is oxalic acid. Now the turn for the mineral acid. अब mineral acids क्या होते हैं, सिंपल सी है बात. वो एसिड्स जो मिनरल्स के थ्रू प्रिपेयर करे गए वो क्या होंगे, मिनरल एसिड्स. अब मिनरल एसिड्स को ऑब्वियसली हम मैन मेड और सिंथेटिक एसिड्स भी बोलेंगे. क्यों, क्योंकि ह्यूमंस जो है, मैन जो है, और वी कैन से एनीथिंग दैट इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी थ्रू अ मैन, उसको हम बोलते हैं मैन मेड एसिड और वी कैन से सिंथेटिक एसिड, राइट. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. Hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. All the three acids are very strong acids. Here are some organic acids and their sources. So the first source is vinegar, right? First source is vinegar. Let me change my pen. So the first one is vinegar. विनेगर से कौन सा एसिड मिलता है हमें, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट वन इज गुआवा एंड आंवला. इट कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट वन इज लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रस फ्रूट. इट विल कंटेन सिट्रिक एसिड. सॉर मिल्क और कर्ड में कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड. एंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, इनमें कौन सा एसिड होगा, मिथेनोइक एसिड. टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड. Next one is tamarind, इमली, right? Tamarind means इमली. इमली में कौन सा एसिड होगा हमारे पास, tartaric acid. So these were the important acids and their sources. This will directly come in your exam, so you have to learn all these sources along with their acids correctly.
अब हमें बताना है कि जो एसिड है वो मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है या ट्राइप्रोटिक है. सिंपली लेट अस चेक व्हाट आर मोनोप्रोटिक एसिड, राइट. मोनोप्रोटिक एसिड सिंपली कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1H प्लस आयन रिलीज करे, राइट. डाइप्रोटिक एसिड कौन से होंगे, जो 2H प्लस आयन रिलीज करे. सिमिलरली ट्राइप्रोटिक कौन से होंगे, जो 3H प्लस आयन रिलीज करे, राइट. सो अब जो भी हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उनको हमेशा फॉर्मूला के फर्स्ट पोजीशन में रखा जाता है, राइट. फॉर्मूला की स्टार्टिंग में ही रखा जाता है. सो इन द फर्स्ट केस only 1H is there in the starting, so it will be monoprotic acid. In second it will be 2H, so it will be diprotic. In third there are 3H, then it will be triprotic acid, and the last only 1H is present at the starting, so it will be monoprotic. यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, राइट. सो ओनली 1 हाइड्रोजन इज एसिडिक here, so it will be monoprotic acid. सो अब हमें यहाँ पर कुछ एसिड्स चेक करने हैं. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है फॉर्मूला की स्टार्टिंग में, तो ये कैसा होगा, मोनोप्रोटिक. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, सो इट विल बी डाइप्रोटिक. नेक्स्ट वन कंटेन्स ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट विल बी मोनो. नेक्स्ट में भी स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये भी मोनो होगा. इस वाले में स्टार्टिंग में 3 है, तो ये ट्राई होगा. और यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है यहाँ पर एसिडिक. ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो फॉस्फोरस की वैलेंसी पूरी कर रहा है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है. ओनली 2 हाइड्रोजन्स आर एसिडिक, सो इट विल बी डाइप्रोटिक एसिड. नाउ द टर्न फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड सिंपली कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएं, राइट. कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं. कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 मोल्स HCl के हैं, तो वो 5H प्लस और 5 ही Cl माइनस आयंस में ब्रेक हो जाए, राइट. सो इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. लेकिन वीक एसिड्स कौन से होते हैं फिर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5CH3COOH है. अब इसमें क्या होगा, सपोज इनमें से 3 जो है वो एज इट इज ही प्रेजेंट है अभी भी, बाकी के 2 जो हैं वो आयनाइज हो गए CH3COO नेगेटिव में और H प्लस में, राइट. सो इस टाइप के जो एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते. हम यहाँ इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं. हेयर all the molecules present are in the ionized state, और यहाँ पर हम देख सकते हैं maximum are present as a original form and only few are present in the ionic form. So what are strong acids? Strong acids are assumed to dissociate completely in aqueous solution, और whereas जो weak acids होंगे वो सिर्फ slightly ही हमारे पास dissociate होते हैं aqueous solution में. majority जो होगी वो undissociated होगी. सो अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. सो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं वो क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जनरल फॉर्मूला हो गया एसिड का HA. हेयर A कैन बी एनी हेलोजन. मेनली एसिड आर फॉर्म बाय हेलोजन्स, राइट. सो A इज एनी हेलोजन. सो पूरा का पूरा जो HA होगा वो ब्रेक हो जाएगा H प्लस और A माइनस में. फॉर एग्जाम्पल HCl, इट विल डिसोशिएट इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, राइट. सो हियर आर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक, देन नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3. नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग द फॉर्मूला H2SO4. देन इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फॉर्मूला इज HBr. देन हाइड्रोआयोडिक एसिड, फॉर्मूला इज HI. देन परक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला इज HClO4. एंड द लास्ट वन इज क्लोरिक एसिड हैविंग द फॉर्मूला HClO3. नाउ द टर्न फॉर वीक एसिड. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो वीक एसिड होते हैं वो सिर्फ पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, राइट. मेजॉरिटी जो होती है वीक एसिड में वो अनडिसोशिएटेड रहती है.
राइट। मेजॉरिटी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वीक एसिड के वो अनडिसोशिएटेड रहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, दिस वन इज द एसिटिक एसिड। जब हमने एसिटिक एसिड को वाटर में डाला तो वो डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव में प्लस H प्लस में। सम ऑफ द वीक एसिड्स आर ऑक्सैलिक एसिड, sulfurous acid, phosphoric acid, nitrous acid, benzoic acid, acetic acid and formic acid. Next are some chemical properties of acids, right? So the first chemical property of acid is reaction of acid with metal. तो जब भी हम किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है लिबरेट होती है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है, हमने इसके अंदर रख दिया जिंक, राइट। और अब हमने इसके अंदर सपोज इसके अंदर पहले से H2SO4 प्रेजेंट था और वी कैन से सिंपली HCl प्रेजेंट था। हमने इसके अंदर जिंक का मेटल डाल दिया। अब क्या होगा, हमारे पास जिंक का सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, राइट। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिबरेट हो जाएंगे। सो अब हम इस हाइड्रोजन गैस को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि ये जो गैस है वो पक्का हाइड्रोजन गैस है या नहीं। सिंपली हमें क्या करना है, इसके पास में मैच स्टिक या फिर बर्निंग कैंडल लेकर आनी है। अगर वो पॉप साउंड दे, पॉप साउंड मीन्स लाइट क्रैकर साउंड, राइट, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, राइट। सो जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब भी हम उसको रिएक्ट कराते हैं थ्रू अ मेटल, राइट। और साथ में वो एक उनका रिस्पेक्टिव सॉल्ट देंगे, लाइक इस केस में हमारे पास जिंक क्लोराइड था। सो मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद द जिंक मेटल। यू कैन गो थ्रू दिस रिएक्शन, राइट। So the next one is another example. अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमारे पास कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4, राइट। हमने इस सल्फ्यूरिक एसिड में सोडियम के क्रिस्टल्स डाल दिए, राइट। हमने इसके अंदर सोडियम के क्रिस्टल्स डाल दिए। अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बाय सेम पॉप साउंड वी कैन डिस्टिंग्विश whether the given gas will be the hydrogen gas, right? So the next reaction is reaction of acid with metal carbonate. But first of all we should discuss this reaction. I forgot to discuss it. When the sodium is reacted with sulfuric acid, it will form sodium sulfate and hydrogen gas, right? Formula of sodium sulfate is Na2SO4. So now the reaction of acid with metal carbonate. अब जब हम एसिड्स को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। जो एसिड्स होते हैं वो क्या देते हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करते हैं और एक रिस्पेक्टिव सॉल्ट रिलीज करेंगे अलोंग विद द वाटर जब भी हम उनको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास मेटल कार्बोनेट मीन्स विच विल containing CO3 ग्रुप, राइट। कार्बोनेट मीन्स CO3 -2. CO3 is the representation and the -2 will be the charge, right? So here sodium carbonate formula will be Na2CO3. When it is reacted with HCl, that is hydrochloric acid, we are taking here 2 moles of hydrochloric acid. It will form 2 moles of sodium chloride, 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of water. So right, यहाँ से हमें पता चला कि जब भी हमारे एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, रिस्पेक्टिव सॉल्ट अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। The next one is reaction of acid with hydrogen carbonate. अब सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सिंपली HCO3. It is the representation and -1 will be the charge, right? So hydrogen carbonate is simply HCO3.
अब हम इसका अगर फॉर्मूला बनाएं सोडियम के साथ, सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1 और इस पे -1. बाय क्रॉसिंग वी विल ऑब्टेन NaHCO3. लाइक इन द प्रीवियस केस इट वाज NaCO3, Na के ऊपर चार्ज +1, CO3 पे -2. So here Na2CO3, right? This one is sodium bicarbonate, or we can say sodium hydrogen carbonate, and this one was simply sodium carbonate, right? So जब भी हम एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट along with the carbon dioxide gas and water, right? So acid give carbon dioxide gas, respective salt and water when they react with metal hydrogen carbonate. Here we took the example of sulfuric acid. It will give sodium sulfate, carbon dioxide gas and water when it was reacted with sodium bicarbonate. Here it will be sodium sulfate, Na2SO4. Right? So this was the reaction. 2 moles of sodium bicarbonate reacts with 1 mole of H2SO4 and will form 1 mole of sodium sulfate, 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of water. So these were some topics that are important from the acids, right? So let us revise all the topics one by one again. You have to go through all the topics as they are very important for your entrance exam. So the first topic was indicators. Indicators are simply the substances जो अलग अलग कलर शो करेगा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, राइट? हमारे पास मेनली 4 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. Natural indicators are simply obtained from the natural sources. Few example was litmus, turmeric and red cabbage and China rose, right? First one was litmus. It was obtained from the lichens. Generally it was obtained in purple color and mainly it comes in market in blue and red color. In acidic solution this litmus will convert into blue, litmus will convert into red color, and in the basic solution red litmus will convert into blue color. Next one is turmeric. Original color is yellow. In basic solution it converts into the reddish brown, and in acid no change, right? The next one is red cabbage. Original color was purple. In acid solution it will convert into reddish, and in the base it will convert into greenish yellow color, right? So the next one was synthetic indicators. Synthetic indicators are simply man-made indicator. General example was phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein original color is colorless. In acid it remains colorless, and in base it will convert into pink color, right? Methyl orange original color is orange. It turns into the red in acid and turns into yellow with base. Next one was olfactory indicators. Olfactory indicators means वो indicators जिनको हम simply through smell check out कर सकते हैं कि जो substance है वो acid है या base है. For example onion and vanilla. हमें simply onion की paste लेनी है, उसको solution में डालना है. अगर उसकी स्मेल जो है वो लूज हो जाती है डालते ही तो पता चल जाएगा हमें कि वो बेस है, और अगर उसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो इट मीन्स वो एसिड था, राइट? सिमिलरली वनीला की जो स्मेल होती है वो बेस के साथ वैनिश हो जाती है, और जो एसिड है उसके साथ उसकी स्मेल एज इट इज रहती है. Here were some indicators that you have to go through. Number 1 is red litmus. Original color was red. In acid no change, and in base it will be blue. Next one is blue litmus. Original color is blue. Acid में इसका color red होगा और base में no change. Next one is turmeric. Original color is yellow. In acid it will show no change, and in base it will be reddish brown. Next one is red cabbage juice. It original color is purple. Acid में वो reddish color show करेगा और base पे greenish yellow. Next है phenolphthalein. Phenolphthalein का acid में कलरलेस होता है, ओरिजिनल कलर भी इसका कलरलेस होता है, वेराज बेस में वो पिंक कलर शो करेगा. नेक्स्ट वन इज मिथाइल ऑरेंज. ओरिजिनल कलर विल बी ऑरेंज.
In acid it will show red color and in base it will show yellow color. And the next two was onion and vanilla. Onion and vanilla की जो smell होती है वो base में vanish हो जाती है, whereas in acid the smell remains as it is. नेक्स्ट was यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? सिंपली वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो शो करते हैं फ्रॉम द pH 1 to pH 14, राइट. सिंपली ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास वाटर, प्रोपेनॉल, फिनोफ्थलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड ब्रोमोमिथाइल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट. Here was the image of universal indicator. Now the term for acid. Acids are simply which contains H plus ion in excess amount, or it will contain only H plus ion. Here were the some properties. Number one is they have the sour taste, they turn blue litmus into red, they conduct electricity, they release H plus ion in aqueous solution, right? So two types of acids were there, natural acids and mineral acids. So the natural acids are simply obtained from natural sources. Here are few examples, and the mineral acids were obtained from the minerals, right? And here are the examples of the mineral acids. Generally mineral acids are the strong acids. Here are some organic acids along with their sources that you have to go through, like vinegar contains acetic acid, guava contains ascorbic, lemon, orange and other citrus fruit contains citric acid, curd contains lactic acid, ant sting contains methanoic acid, tomato contains oxalic acid.